Hello students, this is the second part of fluid mechanics, that is viscosity. अभी हम लोग fluids में जो आज का हमारा topic है viscosity and fluid flow में we will discuss about the most important theorem of fluids, that is Bernoulli's theorem. So as the name suggests, fluid mechanics, study of fluids in motion. The first part is viscosity. Fluids में हम लोग जिसको हिंदी में शयानता बोलते हैं, ये वर्ड मैं हिंदी के आपको जानबूझ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यू शुड अंडरस्टैंड इट्स लिटिल मीनिंग ऑल्सो, बिकॉज एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, you know, the vernacular languages are national language. These languages have to be correlated with science. So we are following that. Viscosity is also called fluid friction. See students, viscosity का मतलब है fluid friction, and the cause of friction in solid state also, the cause of friction was relative motion. Here also the cause of fluid friction is relative motion. When the various layers of the liquids are in motion, आप ऐसे कोरिलेट करिए कि लिक्विड फ्लो कर रहा है और ये इसकी लेयर्स हैं जिनका एरिया A है और दो लेयर्स के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी dv है और इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस dx है. लिक्विड फ्लोज इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस लेयर्स. जैसे हम सॉलिड, हम ज़मीन में चलते हैं तो ज़मीन और हमारे पाँव के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, वैसे ही फ्लूइड्स में ये इसकी अलग अलग लेयर्स हैं. अलग अलग लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होने के कारण, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, अ विस्कस फोर्स ओरिजिनेट्स, एक विस्कस फोर्स आती है जो डिपेंड करती है एरिया पे, रिलेटिव वेलोसिटी पर, दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस पर. इफ़ वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, this viscous force is given by minus eta a dv by dx. This dv by dx is called velocity gradient. इसको हम लोग velocity gradient बोलते हैं. हिंदी में इसका नाम है वेग प्रवणता, means velocity with respect to distance. The word gradient means with respect to distance. This negative sign shows the viscous force acts in a direction opposite to that of motion. Liquid आगे flow कर रहा है, viscous force इसको oppose कर रहा है. This constant eta is called coefficient of viscosity. इसको हम coefficient of viscosity बोलते हैं, जिसकी यूनिट MKS सिस्टम में डेकापॉइज और CGS सिस्टम में इट इज़ पॉइज. यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन दीज यूनिट्स ऑल्सो. 1 डेकापॉइज is equal to 10 poise. Is that clear, student? So this is the basic formula in viscosity that was given by Newton. Newton, as we all know, he is the father of classical physics. He has intervention in fluids also. Then another law in viscosity is Stokes' law. That was given by Stokes. That is called Stokes' law. That also deals with the viscous force. It is applicable to a spherical body. आप वो spherical body एक parachute मान सकते हैं, एक rain drop मान सकते हैं, tears मान सकते हैं. ये किसी मीडियम से, द मीडियम में बी एयर और इट मे बी लिक्विड. दिस पैराशूट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स. दीज आर द वेरियस लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. व्हेन दिस बॉडी मूव्स डाउनवर्ड्स, इसका वेट देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है mg. ये अलग अलग लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ. रिलेटिव मोशन होने के कारण इसमें एक विस्कस फोर्स लगेगा जो डिपेंड करता है इसके रेडियस पे, इसकी वेलोसिटी पर, क्योंकि ये बॉडी नीचे आ रही है वेलोसिटी पे, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर. सो अकॉर्डिंग टू स्टोक, दिस विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी. ऑन रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज 6 pi eta rv. दिस एक्सप्रेशन gives us the Stokes force, and this velocity is called terminal velocity. We will derive and we will find the expression for terminal velocity. And according to Archimedes principle, we can apply Archimedes principle over here also. This drop is falling downwards, so it will experience an upthrust. Upthrust is also known as buoyant force. I can see the smile on students' face. They are enjoying this topic. Buoyant force is also given by V sigma g. See, sigma is the density of medium, rho is the density of body. So when a parachute or a raindrop or some spherical body moves downwards, a stage is reached when the upward forces balances the downward forces. Upward force is upthrust
and Stokes force. These forces balances the weight of the body. As you can see, upthrust is V sigma g, Stokes force is 6 pi eta RV, and weight is mg. This mg can be written as volume into density. As the shape of the body is spherical, volume will be 4 by 3 pi r cube, and the shape of the medium replaced by this body is also 4 by 3 pi r cube. On solving it, we will get the expression for terminal velocity, जिसको हिंदी में हम सीमांत वेग बोलते हैं, 2 by 9 r square g rho minus sigma upon eta. That gives us terminal velocity. As you can see in the formula itself, terminal velocity is directly proportional to time. जब कोई पैराशूट नीचे आता है, आप देखो स्पीड के साथ नीचे आता है और एक सर्टेन टाइम के बाद it moves with a constant velocity. So this is a very important concept of fluid mechanics, right? We have used Stokes law. हमने Stokes law की हेल्प से टर्मिनल वेलोसिटी निकाली है. टर्मिनल वेलोसिटी का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारी लाइफ में है, पैराशूट्स, रेन ड्रॉप्स एंड ऑल. देन वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को हिंदी में अविरलता का सिद्धांत बोलते हैं. कि कोई पाइप है जिसका वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लाइक दिस. दिस इज़ अ पाइप ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और आप इमेजिन करिए, यहाँ से इसकी हाइट h1 है, यहाँ पे इसकी हाइट h2 है. और आप अपनी डे टू डे लाइफ में कोरिलेट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, सपोज आई एम होल्डिंग अ पाइप, आप ये इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं. एंड सपोज इफ आई हैव टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, व्हाट आई विल डू, आई विल डिक्रीज इट्स एरिया. आप इस चौक को एक पाइप मान सकते हैं, इसमें से वाटर आ रहा है, इसकी ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक है. मैंने पाइप के आगे अपनी उंगली से इसके एरिया को कम किया. एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी. दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. और वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2. एज दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, this is pi r square v1, this area is pi r2 square v2. This equation of continuity is also related with another expression in viscosity, that is called Poiseuille's equation. See, Poiseuille's equation deals with volume of the liquid flowing per unit time through this pipe. जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारे एक्सप्रेशंस हैं, उसके लिए आप इस डायग्राम को रेफर कर सकते हैं. यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है. तो इसमें जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर with respect to distance, and L is the length of this pipe. That depends on radius of the pipe, and that depends on coefficient of viscosity eta. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग नॉर्मली शयानता गुणांक हिंदी में बोलते हैं. आप विस्कोसिटी को ऐसे समझ सकते हैं, कोलतार हैज़ गॉट द मैक्सिमम विस्कोसिटी, यू नो. देन हनी, शहद की विस्कोसिटी भी ज़्यादा है, मिल्क की भी विस्कोसिटी है, ब्लड हैज़ गॉट विस्कोसिटी, water has got the least viscosity. So if we derive it by dimensional analysis, this expression comes out to be volume upon time, and the proportionality constant is equal to pi by 8 p by l r की पावर 4 और eta की पावर -1 आती है. तो ये this expression also deals with the volume of the liquid flowing per unit time through a pipe or a cross section. ये भी देखिए, एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है. आप देख सकते हैं, दिस इज एरिया एंड दिस इज वेलोसिटी. एरिया इज ऑल राइट, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. एंड व्हाट इज एरिया इंटू डिस्टेंस? वॉल्यूम अपॉन टाइम. सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम flowing through a pipe always remains constant. So this is Poiseuille's equation, and the most important theorem, I mean जिसके लिए सारे बच्चे वेट कर रहे हैं इतनी देर से, that is Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem is the basic fundamental theorem of fluid mechanics that deals with law of conservation of energy. आप इसको ऐसे समझिए, ये law of conservation of energy पर बेस्ड है, जिसको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं. एंड दिस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जब लिक्विड इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है तो उसका टोटल मास कंजर्व्ड है,
और जब हम किसी भी फ्लूइड फ्लो को किसी इस वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पढ़ रहे हैं तो उसकी एनर्जी में देखिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेनेवर लिक्विड फ्लोज थ्रू दिस वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप देख सकते हैं जब लिक्विड इस वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh अपॉन वॉल्यूम and this PV represents pressure energy, so its sum is always constant. Mass upon volume is density, so we can write half rho v square. Mass upon volume is density rho gh plus P is constant, और basically हम इसको mathematically लिख सकते हैं half rho v1 का square plus rho gh1 plus P1 is equal to half rho v2 का square plus rho gh2 plus P2. This is the initial state and this is the final state. And to summarize Bernoulli's theorem, Bernoulli's theorem को हम summarize करने के लिए जो उसका निचोड़ है वो ये है कि प्रेशर वेलोसिटी के इन्वर्सली रिलेटेड है। आप देखिए लिक्विड जब फ्लो करता है तो दिस एंड विल हैव हायर प्रेशर, दिस एंड विल हैव लोअर प्रेशर, दिस प्रेशर डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड। देखिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, बिकॉज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलता है कि जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम है, और यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, मीन्स प्रेशर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू वेलोसिटी। द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, जिसको आपने भी पढ़ा है और आप इसको आगे भी पढ़ेंगे। आई एम स्टार्टिंग विद हार्ट अटैक। सर्दियों में और विंटर्स में जो हार्ट अटैक है वो आर्टरीज में ब्लड फ्लो की वेलोसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि इन्वर्सली रिलेटेड है। आर्टरीज में आर्टरीज की थिकनिंग से एरिया कम होता है तो वेलोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीजेस, और हार्ट में और आर्टरीज में एक प्रेशर डिफरेंस होने के कारण हार्ट अटैक, जिसको हम लोग वास्कुलर फ्लटर भी बोलते हैं, आई मीन द डॉक्टर्स कैन एक्सप्लेन इट बेटर। देन मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट होता है स्पिनिंग ऑफ बॉल। हम जब बॉल को हवा में फेंकते हैं, जितने भी स्पिनर्स हैं इंडियन टीम के, दैट इज मैग्नस इफेक्ट। देन लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन, जब एरोप्लेन ऊपर राइज करता है, एरोप्लेन के लिफ्ट होने के लिए भी बर्नौलीज थ्योरम रिस्पॉन्सिबल है। देन देर इज एटोमाइजर, जितने भी स्प्रेयर होते हैं, परफ्यूम स्प्रे, डिओड्रेंट स्प्रे, ऑल द स्प्रेज आर बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। देन there are so many examples like Torricelli's theorem, Venturi meter. Venturi meter is also a device that is based on Bernoulli's theorem. It measures the rate of flow of liquid through a pipe. So this Bernoulli's theorem is most important theorem in fluid mechanics. Rest of the topics we will discuss in our next lecture. Thank you for being with us, students. Thank you.